Hello students and welcome once again to your maths online class. Dear students, in my previous video I have explained you exercise 1.1 till question number 8, and today I will continue the same exercise from question number 9. See, question number 9 and question number 10 is related to fill in the blanks. So these two questions I will be taking at the end of this exercise. Firstly, I am continuing with question number 11. So after explaining question number 11 to 15, I will be taking question number 9 and 10. Fine. So firstly, pay attention on question number 11. It is the sum of two integers is minus 15. If one of them is 8, find the other. Okay. दो इंटीजर्स को ऐड करने पर -15 आता है. अगर उनमें से एक इंटीजर है 8 तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? सो दिस इज द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो द इंफॉर्मेशन इज सम ऑफ टू इंटीजर इज -15. First integer is given in the question, that is 8, and second integer we have to find it out. So we will put question mark there. Now whatever we have to find out, firstly we will consider it as x. So let the second integer be x. जो हमें find out करना है उसको हम x मानेंगे. So here we have to find out second integer. So I have put it as x. Now according to question के according दोनों integers को plus करने पर -15 आता है. So according to question it will be first integer plus second integer is equals to -15, right? Now in place of first integer will come 8, and then in place of second integer what will come? X, because we have assumed in place of second integer it will be x. So here it will come x is equals to result as -15. Now according to the rules of equation, 8 plus x is here and -15 is that side. Now we will transfer this 8 other side. इस 8 को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे. कभी भी हम किसी नंबर को अगर दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, अगर वो प्लस का होता है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस, मल्टीप्लिकेशन होता है तो डिवाइड, एंड डिवाइड होता है तो मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो राइट नाउ इट इज़ इन पॉजिटिव. सो व्हेन यू विल ट्रांसफर इट अदर साइड इट विल बिकम नेगेटिव. सो द इक्वेशन विल बी एक्स विल रिमेन हियर ओनली, एक्स इधर ही रहेगा, 8 उस तरफ ट्रांसफ़र होगा. So now your equation will be x is equals to -15 because this 8 comes that side, so it is -8. Now as per the rules of the signs of integers, minus minus plus but sign minus. So 15 plus 8 will give you 23 and the sign of minus will come. So the second integer which was missing, we have to find it out the other integer. So this other integer, this second integer will be -23. Fine. So this was your question number 11. Let's move on to question number 12. See, the question is a bird watcher on a cliff. Cliff means चट्टान, एक पतला पत्थर का टुकड़ा. Okay, on that cliff one bird watcher was standing and he seen a kingfisher 7 meter above him. Okay, उसको एक kingfisher bird दिखी, bird watcher को 7 मीटर अबव हिम, जहाँ वो खड़ा था उससे 7 मीटर ऊपर की तरफ. अर्लियर ही हैड सीन इट 11 मीटर बिलो हिम, और पहले उसने, उस बर्ड वॉचर ने सेम किंगफिशर को 11 मीटर बिलो हिम, अपने से 11 मीटर नीचे देखा था. सो व्हाट वाज द चेंज इन एल्टीट्यूड ऑफ द किंगफिशर? तो किंगफिशर के एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एंड चेंज मीन्स कितना डिफरेंस हुआ किंगफिशर की हाइट के अंदर. ओके, पहले उसने अपने से नीचे की तरफ किंगफिशर को देखा था और बाद में उसने अपने से ऊपर की तरफ किंगफिशर को देखा था, तो कितना चेंज हुआ उसके एल्टीट्यूड यानी हाइट में. सो सी हेयर अबव मीन्स, यहाँ पर जो आपको अबव दिख रहा है, अबव का मतलब है पॉजिटिव मीन्स प्लस, बिलो मीन्स सब्ट्रैक्शन. जब बर्ड उसके ऊपर की तरफ है तो वो डिनोट करेंगे हम पॉजिटिव साइन से, और बर्ड जब उसके नीचे की तरफ है तो उसको हम डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से. और चेंज वर्ड का मतलब है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन. ओके, चेंज निकालना है, कितना डिफरेंस है उसकी हाइट के अंदर. सो डायरेक्ट वर्ड डिफरेंस यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पे वर्ड लिखा है चेंज. सो दिस चेंज मीन्स सब्ट्रैक्शन. ओके,
सो सी, पहले उसने जो बर्ड थी वो अपने ऊपर की तरफ देखी, सो 7 मीटर ऊपर की तरफ देखी तो आप उसको 7 मीटर से डिनोट करोगे, और नीचे की तरफ देखी तो आप उसको डिनोट करोगे -11 मीटर से, राइट। इस तरीके से आप दोनों को डिनोट करोगे। और चेंज, दोनों के बीच में चेंज निकालना है हमको, तो मैंने बताया चेंज मतलब माइनस, तो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा, एज आई हैव पुट हियर। फाइन। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप यू विल ओपन द ब्रैकेट, सो +7 मीटर मीन्स 7 मीटर. Here minus outside the bracket and minus inside the bracket, so minus minus will become plus, and then 11 meter. Now both are with plus sign, so simply you have to add it. 11 plus 7 is equals to 18 meter. So what was the change in the altitude of the kingfisher? So the change in the altitude of the kingfisher was 11 meter. Fine. So this is your question number 12. Now see question number 13. In a quiz, Bhaskar scored -60, 20 and 0, and Tamanna scored 20, 0 and -60 in 3 successive rounds. Successive means the rounds which comes one after the other. एक के बाद एक जो rounds आए उसके अंदर भास्कर ने -60, 20 and 0 स्कोर किया, एंड तमन्ना ने 20, 0 and -60 स्कोर किया. Who scored more? दोनों में से किसने ज़्यादा स्कोर किया? This we have to find it out. So I have divided the page into 2 parts. Here I have solved Bhaskar's scores and here I have solved Tamanna's score. एक तरफ आप भास्कर का स्कोर फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तरफ तमन्ना का स्कोर. So see, whenever we score marks, points in any round, कभी भी आप कोई भी राउंड, कोई भी गेम खेलते हो, उसमें आप कुछ भी स्कोर करते हो. जैसे आपने फर्स्ट राउंड में 15 स्कोर किया, सेकेंड राउंड में 45 स्कोर किया, थर्ड राउंड में 20 स्कोर किया, तो आप फाइनल कैसे निकालते हो इसको? ऐड करके. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू हियर. दीज आर द मार्क्स, दीज आर द स्कोर विच दे हैव स्कोर्ड, सो वी हैव टू add it. So how we will be adding it? See, -60 in bracket plus 20 also in bracket plus 0 also in bracket. First of all you put all the 3 integers in bracket. पहले आप तीनों integers को bracket में रखिए. Then in next step you can open the bracket. So it will be -60 plus 20 and plus 0. Okay. Then 20 plus 0 will give you 20 only. Now minus plus minus. Okay. So 60 में से 20 को minus करेंगे आप आएगा 40. But the sign of greater integer will come. So the greater is 60 and before 60 is minus sign, so will come minus here. So -40. So this was Bhaskar's score. He scored -40. Now let's move on to Tamanna's score. So Tamanna scored 20 first round. So it will come in bracket plus 0 in second round, again in bracket plus -60 in third round. So it will also come in bracket. Next step, open the bracket. 20 plus 0 plus minus will give you -60. Now 20 plus 0 is 20 and -60. So here no sign is there. So that means plus, again plus minus minus. So 60 minus 20 will give you 40. Greater is 60. It is having minus sign. So here it will come minus sign. So Tamanna scored -40 and Bhaskar also scored -40. And it was asked in the question who scored more. So here no one scored more, they both scored equal. See, both Bhaskar and Tamanna scored equal marks. Fine. So this was your question number 13th. Now let's move on to question number 14th. For morning walk, Amrita goes 8 kilometer due south from her home. Morning walk के लिए अमृता 8 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है अपने घर से, and then from there 10 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ इन द फर्स्ट राउंड, और फिर वहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है. इफ़ द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट राउंड इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड राउंड, जो भी पॉइंट फर्स्ट राउंड का एंड पॉइंट होगा वही पॉइंट सेकेंड राउंड का स्टार्टिंग पॉइंट होगा. सो हाउ फार एंड वेयर विल शी बी फ्रॉम हर होम आफ्टर 5 राउंड्स. तो 5 राउंड्स के बाद में अमृता कहाँ पहुँचेगी? दिस वी हैव टू टेल. See, what's the question? This I am explaining you with this diagram also. Like, see, north, south. यहाँ पर अमृता का होम है, घर है. तो घर से पहले वो साउथ की तरफ जाती है 8 किलोमीटर, फिर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है 10 किलोमीटर. अब जो एंड पॉइंट है, ओके, वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा. लाइक वो वॉक कर रही है ना, तो वॉक करके पहले वो यहाँ से यहाँ पर गई साउथ में, फिर यहाँ से टर्न करके वो नॉर्थ तक गई.
अब ये उसका एंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से वो वापस टर्न कर रही है तो यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा सी। यहाँ सी इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब 10 किलोमीटर वापस साउथ तक आई और फिर 8 किलोमीटर अपने घर तक गई। फिर वापस 8 किलोमीटर वो नीचे साउथ तक आई और फिर साउथ से नॉर्थ तक गई 10 किलोमीटर। अगेन 10 किलोमीटर वो साउथ में आई और फिर साउथ से वापस अपने घर 8 किलोमीटर वो वॉक कर रही। फाइनली घर से वापस साउथ तक आई वो 8 किलोमीटर और साउथ से वो नॉर्थ तक 10 किलोमीटर गई। दिस शी हैज़ डन सेम इन 5 राउंड्स। टोटल उसने 5 राउंड्स लिए। तो हमें बताना है फाइनली कितना डिस्टेंस मीन्स कितना किलोमीटर वो अपने घर से दूर है। सो सी in 5 rounds. So here it's very simple. You have to find it out of first round firstly. Amrita walks 8 kilometer in the south. पहले उसने 8 किलोमीटर साउथ में गए वॉक किया। देन शी देन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। फिर वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में गई। तो फर्स्ट राउंड का डिफरेंस निकालिए आप। सो आफ्टर 1 राउंड शी वॉक्स 10 किलोमीटर माइनस 8 किलोमीटर। सो 2 किलोमीटर मोर इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम द साउथ। साउथ से नॉर्थ में वो 2 किलोमीटर ज़्यादा चली। साउथ में चली थी 8 किलोमीटर और नॉर्थ में चली 10 किलोमीटर। तो नॉर्थ में कितना ज़्यादा चली? 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। एंड सेम शी हैज़ डन इन ऑल द 4 राउंड्स। ओके, सो सी same she did in 5 rounds. So 2 kilometer north multiply by 5. So 2 into 5 will give you 10 kilometer north. So this will be your final answer. Okay, you have to find it out of only first round and get the difference of the first round, and with that difference you have to multiply consequent you have to multiply it with 5 because she has taken 5 rounds there. So 2 multiply by 5 will give you 10 kilometer north only because she has covered 2 kilometer more in north direction. Fine. So this will be the answer of question number 14th. Now question number 15th. Minimum temperature on Wednesday was 30 degrees Celsius. On Thursday, minimum temperature fell by 4 degrees Celsius. Rainfall on Friday caused the minimum temperature to fall further by 7 degrees Celsius. What was the minimum temperature on Friday? See, minimum temperature given है Wednesday का. Wednesday को minimum temperature था 30 डिग्री सेल्सियस. Thursday को minimum temperature fell हो गया. Fell means गिर गया, नीचे चला गया 4 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल ऑन फ्राइडे, रेनफॉल हुई फ्राइडे को तो मिनिमम टेम्परेचर और नीचे चला गया 7 डिग्री सेल्सियस. सो हमें बताना है कि फ्राइडे को मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा. सो हेयर फॉल मीन्स माइनस. पहले आपको ये पता करना है इंटीजर चैप्टर में कि प्लस होगा या माइनस होगा. सो यहाँ पर फॉल वर्ड आ रहा है, फेल, फॉल. सो दिस मीन्स टेम्परेचर नीचे गिरा है. सो नीचे कोई भी चीज़ अगर नीचे जा रही है दैट मीन्स माइनस. सो 3 days आर देयर, वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे. 3 days है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे. सो वेंसडे को स्टार्टिंग था 30 डिग्री सेल्सियस, तो वेंसडे के नीचे आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, सेंटर में प्लस का साइन. थर्सडे को टेम्परेचर नीचे गिरा था, ओके, नीचे गिरा था, फेल, सो इट विल बी -4 डिग्री सेल्सियस. प्लस फ्राइडे को भी जो टेम्परेचर था वो नीचे गिरा था 7 डिग्री सेल्सियस, सो अगेन इट विल कम विथ नेगेटिव साइन. गेटिंग इट? फेल और फॉल वर्ड के साथ में आपको माइनस का साइन लगाना है. तो 4 डिग्री सेल्सियस के साथ भी माइनस का साइन आएगा और 7 डिग्री सेल्सियस के साथ भी माइनस का साइन आएगा. नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. सो 30 डिग्री सेल्सियस प्लस आउटसाइड माइनस इनसाइड, सो प्लस माइनस माइनस, अगेन प्लस आउटसाइड माइनस इनसाइड, सो माइनस. ओके, नाउ these both numbers are with minus sign, so you have to add it, minus minus plus but sign minus. So 7 plus 4 will give you 11 degrees Celsius and minus sign will come here. Okay, then finally it is plus and it is minus, so 30 minus 11 will give you 19 degrees Celsius, and the greater number is 30. It is having no sign, that means plus, so here also will come plus 19 degree Celsius. So this will be the temperature on Friday. Okay, so this was your question number 15th. Now I am explaining you fill in the blanks. Question number 9th. See students, the additive identity of integer. You have to keep in your mind additive identity word. Whenever identity word comes, then it means 0. I have explained you question number 8. There I have explained you additive inverse.
So don't get confused between these two words because students gets confused between additive inverse and additive identity. Additive inverse means opposite sign. You have to change the sign. And additive identity, simply it means 0. So whenever you read the word additive identity, then you have to put 0 there. Fine. So the first answer will be 0. B part. By the commutative property of addition. Commutative property के अंदर क्या होता है, 2 नंबर्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और 2 नंबर्स के होते हैं राइट हैंड साइड में, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है. लाइक 5 + 6 अगर इधर है तो दूसरी तरफ हो जाएगा 6 + 5. 2 नंबर्स इधर हैं, 2 ही नंबर इधर रहेंगे, बस उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा. लाइक अगर 11 + 16 इधर है लेफ्ट हैंड साइड में तो दूसरी तरफ सेम रहेंगे लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 16 + 11 हो जाएगा. सो दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो हियर इट इज़ गिवन x + y. ओके, सो आंसर में क्या हो जाएगा, सेम रहेंगे x + y, बट आपको इसका ऑर्डर चेंज कर देना है. दैट मीन्स यू विल पुट, सॉरी आई हैव रिटन z हियर, सो इट विल बी y + x. okay, so this will be your answer, x + y, so the opposite will be y + x. So this is your commutative property. Then C part, commutative and associative property does not hold true for subtraction of integer. Now commutative property I told you 2 numbers होते हैं, like 5 + 9 अगर इधर है तो दूसरी तरफ हो जाएगा 9 + 5. ओके, एडिशन में तो ये वर्क करेगी क्योंकि अगर आप इधर ऐड करोगे तो भी आपका 14 आएगा और उधर ऐड करोगे तो भी आपका 14 आएगा. बट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती. कैसे, अगर आप यहाँ पे 5 - 9 करोगे, ओके, तो दूसरी तरफ ऑर्डर चेंज होने पे क्या हो जाएगा, 9 - 5. फाइन. अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 5 - 9 आ जाएगा -4 और यहाँ पर 9 - 5 आ जाएगा +4. सो इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ -4 एंड इट इज़ +4. दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन. ये प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क करती है बट ये सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है. नाउ व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं, 5 + 9 जैसे ब्रैकेट में है और बाहर हमने ले लिया यहाँ पे 1. ओके, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने 5 को ब्रैकेट के बाहर ले लिया और 9 + 1 को ब्रैकेट के अंदर ले लिया. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली 3 नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स ब्रैकेट के अंदर, 1 नंबर ब्रैकेट के बाहर. ओके, और दूसरी तरफ 1 नंबर ब्रैकेट के बाहर और 2 नंबर्स ब्रैकेट के अंदर. तो यहाँ जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सो 9 + 5 विल गिव यू 14 + 1 एंड हियर 5, 9 + 1 विल गिव यू 10. सो 15 इज इक्वल्स टू 15. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क कर रही है. नाउ वी हैव टू चेक इट फॉर सब्ट्रैक्शन. अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन में चेक करें, ओनली जहाँ पर प्लस का साइन है उसकी जगह आप माइनस का साइन लगाइए और चेक करिए. 5 - 9 - 1 इज इक्वल्स टू 5 - 9 - 1. Okay, I have changed the sign of addition to subtraction because we are checking it of subtraction. Now when you will solve this bracket, you will get -4 and then -1. Here 5 - 9 - 1 will give you 8. Greater is 9, so plus sign only. Now subtract minus plus, but sign minus, so it will be -5. And here 5 - 8, so plus minus 8 minus 5 will give you 3. Greater number is 8, so minus sign. So see, both the numbers are not same. It is -5 here and -3 here. So it does not work in the case of associative property. Means commutative property and associative property does not hold true for subtraction of integers. Got it? Commutative और associative addition में work करेगी but subtraction में work नहीं करेगी. So this is the answer. Now D part. Sum of an integer and its additive inverse. आप कोई भी नंबर ले लो, लाइक हमने यहाँ पर लिया 45. अब इसका एडिटिव इन्वर्स लेते हैं. एडिटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ साइन. तो अगर +45 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -45, राइट. अब अगर हम इसका सम करते हैं, सम यानी इसके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे हम, ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस माइनस, सो 45 - 45 विल गिव यू 0. तो कभी भी आप कोई नंबर लेते हो और उसका एडिटिव इन्वर्स लेते हो और फिर उसका सम निकालते हो यानी उसको ऐड करते हो तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा. आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो इसके अंदर. जैसे यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, -39. ओके,
अब इसका एडिटिव इन्वर्स अगर मैं लूँगी तो इसका साइन चेंज होगा, यानी कि वो हो जाएगा +39। ओके, अब मुझे इसका सम करना है यानी इसके बीच में प्लस का साइन लगाऊंगी, ओपन द ब्रैकेट, -39 +39, अगेन सेम इंटीजर, ऑपोजिट साइन, इट विल कैंसिल, सो आंसर विल बी 0. फाइन, सो दैट्स व्हाट इट इज रिटन, सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0. तो कोई भी इंटीजर और उसका एडिटिव इनवर्स हो, उसको आप प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा. सो दीज वर द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. Now see the fill in the blanks of question number 10th. Here you have to fill in the blanks and then you have to name the property also, that which property is working here. So see, two numbers are there and two numbers are here. So whenever two numbers are both the sides, it is commutative property. But आपको बीच का sign देखना है उसके अंदर, like see here, -3 plus -4. Here this number is missing. So firstly आपको देखना है कौन सा नंबर मिसिंग है. -3 दोनों तरफ है, क्या मिसिंग है, -4. सो हियर इट विल कम -4, यहाँ पर आपका -4 आ जाएगा. अब कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मिडिल साइन देखिए आप, प्लस का साइन है, सो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. फाइन, नेक्स्ट 6 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 6. सो 6 में आप क्या ऐड करोगे कि वापस 6 आ जाएगा, ऑफ कोर्स यू विल ऐड 0. सो 6 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड आई टोल्ड यू वेन एवर 0 इज कमिंग, कभी भी 0 आए तो आपको ध्यान रखना है एडिटिव आइडेंटिटी. सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. फाइन, नेक्स्ट -46 प्लस 0. अगर आप -46 में 0 को प्लस कर रहे हैं तो 0 को जब भी हम किसी भी नंबर में प्लस करते हैं तो हमें वापस सेम नंबर मिलता है. तो -46 में आप 0 को ऐड करेंगे तो वापस आपको -46 ही मिलेगा. तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें भी 0 आ रहा है, तो 0 आते ही एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. Fine. See the next one. 3 numbers are there. 4, 5 plus -6. 2 numbers in bracket, 1 outside the bracket. Here again 2 numbers in bracket, 1 outside the bracket. So 3 numbers दोनों तरफ आते ही आप ध्यान रखिए associative property है. पहले आपको देखना है कौन सा नंबर मिसिंग है. 4 दोनों तरफ है, -6 भी दोनों तरफ है. So the missing is 5. So in the blank space will come 5. And it is also clear 3 integers are there, so it is associative property. अब बीच में साइन कौन से हैं, प्लस 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 प्लस. ओके, सो दिस विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन होता तो ये हो जाती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. फाइन, नाउ नेक्स्ट 7 प्लस -7. सी दिस इज एब्सोल्युटली सेम, 7 and -7. देन आंसर इज 0. ओके, सेम नंबर्स, ऑपोजिट साइन, साइन चेंज हो रहा है, सो दिस इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. सिमिलरली इन एफ पार्ट 5 वी वांट आंसर एज 0. सो 5 आंसर अगर 0 चाहिए तो हमें ऑपोजिट साइन चाहिए होगा, तो -5. सो 5 प्लस -5, सो दिस इज अगेन चेंज ऑफ साइन, सो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. फाइन स्टूडेंट्स, so this was your question number 10th. So here I have explained you all the sums of exercise 1.1, question number 1 to 15. In my previous 2 videos I have explained till question number 1 to 8. If you have any doubt you can go through my previous videos, and in this video you will get the solution from question number 9 to question number 15. Now that's all for today. I will be giving you the explanation of exercise 1.2 in my next video. So stay tuned for my next video where you will get the explanation of exercise 1.2. Fine students? So that's all for today. Meet you all in my next video. Till then, please take good care of yourself. Thank you students.